I think we are getting live. Sir. Andy, just let me know if you are live. Okay. Yeah. So good evening, everybody, and welcome to this interaction post-exam. And we all wanted from Arise to come and connect with you all after the exam. I know a lot of emotions must be there, and it must be a very tiring day since morning. आप लोग सुबह उठ के exam center early in the morning 5 o'clock, and we've seen all the travel, transport into the examination hall. I know it is a tiring day, but I hope this will relieve you from your stress, and also you'll have a peaceful sleep also tonight. And first of all, congratulations for all the efforts that you have done. ठीक है, तो जो भी है आपने 6 महीने जो आपको करना था, आपने दिल से किया, right, hard work किया, first day से last day तक, since you started your preparation, you have given your heart into this. And I think it is important to value that. It's important to respect that. मेहनत कभी खराब नहीं होती है, मेहनत इन्वेस्ट होती है और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, right? And with that note, let me just have a quick exam analysis कि कैसा था पेपर, क्या strategies काम करें. So to begin with, first the paper 1 students exam का paper 1 बोले थे कि थोड़ा सा difficult था. It was more of a level 2 questions that I would say कि भी एकदम straightforward question नहीं पूछा, जो anatomy का भी पूछा गया हो या फिर biochemistry भी पूछा गया हो. They wanted you to think little more analytical type में था कि not just about one liner PYQ. They asked you on more analytical type. And PSM was difficult. That was the काफी नए topics पूछे गए थे. But overall, if you see, it was a moderate paper. And what feedback I'm getting from students from Arise, especially, is that it was a doable paper, sir. हम लोग ने जो course किया था, कि थोड़ा सा detail में, Arise course is little more on in depth. Right from the beginning, we have the tendency to see that the students don't get just a very concise content. They need what is required for the exam. हम इस पे काम करते हैं कि भाई बच्चा exam के दिन उसको लगे कि हाँ ये topics हमने सुना है. We try our best from our side. And paper 2 was doable. Paper 2 में, most of the questions were pretty much from the topics that were previously tested. Same question नहीं आया, PYQ के type में one liner में नहीं आया, but concepts इतना भी, बिल्कुल नया भी नहीं था. So it is important to understand after this exam कि आप अपनी तैयारी, तो all the future aspirants have a thought process कि मैं conceptual learning को emphasize करूंगा. ऐसा नहीं कि भी बिल्कुल लास्ट में जाके शॉर्ट मटेरियल्स पे, क्विक मटेरियल्स पे नहीं करेंगे. आप मेनली फोकस करेंगे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कंटेंट बिल्डिंग पे, और जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे, राइट, ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, उतना आपके लिए एग्जाम इजी दिखेगा. And we have with us our medicine faculty, Dr. Priyansh, and also we have Dr. Nadeem with us, our beloved secretary faculty, and a quick inputs from Dr. Priyansh. Yes, good evening, sir, and good evening, students. As we are getting many reviews from so many of the students, as sir said rightly कि जो first half था उसके बाद में बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं ये कहाँ से पेपर आ गया, ये क्या हो गया. But when you see those question again and again, when we are getting those question again and again, जब उसको वापस frame करके देख रहे थे, it was the main thing, the language was tricky. Obviously there were some questions which were completely out of the box, new things उन्होंने पूछे कुछ subjects में जाके. ऐसा नहीं था कि सब कुछ notes में से था, लेकिन अगर हम केवल कोर नोट्स की भी बात करें तो जो क्वेश्चन आए थे मतलब इतने थे कि आराम से हम डूएबल थे और हम एग्जाम क्लियर कर सकते थे. और एराइज में हमेशा हमने एक ही चीज पे फोकस किया है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे, इन डेप्थ टीचिंग पे. तो क्लास जरूर रिग्रेस होते हैं, कोर्स रिग्रेस होता है, सर भी हमेशा यही एम्फेसाइज करते हैं, सब फैकल्टी के साथ यही डिस्कशन होता है कि हमारे को कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है, क्लिनिकल इंटीग्रेशन रखना है. एंड टुडे इट हैज टर्न्ड वेरी फ्रूटफुल फॉर अराइज स्टूडेंट. And as I am getting the review from the different students, so overall हमें basically एग्जाम तो जिन्होंने देना था उनका हो गया, लेकिन जो फ्यूचर में एग्जाम देने वाले, जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, उनको यहाँ से हमारे को एक चीज को चेंज करना है. हमें कंसेप्ट बिल्डिंग पे और ज्यादा फोकस करना है. वी नीड टू गो मोर इन द क्लिनिकल डेप्थ एंड सो फोर्थ.
जैसे जैसे अभी थोड़े से 24-48 आवर्स निकलेंगे एंड वी विल गेट द कंप्लीट फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस विद द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच वर देयर, we will get a good sense and good idea that what was the exact things that they were asking. But overall, the exam second half was obviously very much doable compared to the first one. So kahin na kahin out of 300, if you see the questions that are coming continuously, you will find that at least there will be maybe 80 or 100 questions that was very similar of the past papers, and the remaining were little bit tricky, maybe 100, 150 questions, and let's say 30, 40, 50 questions were very difficult, we can say like this. But अगर हम उस 250 वाला जो चंक जो बचता है, जो डूएबल पार्ट था, उसमें हमने अगर मिस्टेक नहीं किया है, and we had a good concept which with good theory knowledge, clinical aspect, तो I think the things were very much doable. Just make एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार्डियक टेम्पोनेट का क्वेश्चन था, हर बार तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है बैक स्टैट, ये डायरेक्ट मतलब ऑल एक्सेप्ट के बैक स्टैट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस बार उन्होंने उसके अंदर जे को इंटीग्रेट किया कि प्रोमिनेंट एक्स होता है, इस्ट वाई होता है, और इस तरीके से क्वेश्चन बनाया। तो अगर आप नोट्स देखेंगे मेडिसिन में, हमने ये सारा डिस्कस किया था कि प्रोमिनेंट एक्स आएगा, डिमिनिश्ड वाई आएगा, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस के साथ उसको रिलेट भी किया था, उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। सो दैट हैज टर्न फ्रूटफुल। सो अगेन जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको मैं कहना चाहूंगा, इन डेप्थ लर्निंग करनी है, रिग्रेस ट्रेनिंग करनी, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर आप वो नोट्स ही बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, डेफिनेटली हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। राइट सर, विल हैंड ओवर टू नदीम सर टू ऐड ऑन फ्यू पॉइंट्स। डॉक्टर नदीम, आप लोग आपका क्या इनिशियल इनपुट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर द एग्जाम? Hi everyone, good evening. I hope all of you have done a great job. आज जितने लोगों ने एग्जाम लिखा है, आई थिंक सब लोग सोच चुके होंगे शायद कि बहुत टायर्ड होंगे, हाँ, लेकिन जितने लोग अभी देख रहे हैं वो शायद के फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं। ओवरऑल सर जो क्लिनिकल ये है कि इस बार का जैसे अराइज के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं लोग, और ये लोग जो बच्चों को परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करके। तो ये चीज़ जो होता है, जो लगता है बच्चों को कि उसके लिए प्रेशर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कि mentors know what to do for the students। जैसे मुझे जो कि हमेशा से लगा है कि अराइज had always been working like an Apple company, कि हमें स्टैंडर्ड पे काम करना, जो रियलिटी है, जो स्टैंडर्ड है, जो हम लोग सिर्फ एग्जाम नहीं पास कराना, हमें रियल में डॉक्टर बनाना है। और वो रियल में आज के टाइम पे जो MCI वाले भी यही चाह रहे हैं सर, कि सर वो वन लाइनर को निकालते जा रहे हैं, वन लाइनर दे आर नॉट आस्किंग एनी मोर। उसके बाद से सर और भी जितने हिसाब से सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस देखा हम लोगों ने, तो जो मोस्ट अपडेटेड पॉइंट्स है, जो स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो जैसे PSM को लेकर के देखेंगे या दूसरे सब या साइकेट्री से हो या जो भी हो, जितने भी स्टैंडर्ड जो न्यू चीजें हैं, सारी चीजें जो मुझे लगा सर, ये जो एग्जामिनर जो बनाते हैं क्वेश्चन पूरा एक स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से, जो जितने भी मार्केट में हमारे पास में शॉर्टकट बुक्स है वो उसके हिसाब से नहीं बनाया जाता है। और इस पे लगता है हमारी जितनी भी फैकल्टी दे आर वर्किंग सो हार्ड। तो जितने फैकल्टीज हमारे पास, जितने अपडेटेड नोट्स हैं, और जो सारे फैकल्टीज हम लोग यहाँ पे जो सारे जितने भी अपडेटेड पॉइंट्स पे काम करते हैं वो स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो फैकल्टी आपको जो पढ़ा रहे हैं हम लोग ने, तो पूरे फैकल्टी पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपका जो हार्डवर्क है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और बस आपका ये काम है कि 5 मंथ्स अगर हमारे साथ में हो तो 5 मंथ्स यू हैव टू फॉलो, मतलब यू हैव टू फॉलो अस, जो भी पूरी तरह कंप्लीटली। जो लोग स्टार्ट कर रहे, इवन इफ यू आर लर्निंग एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, हर चीज के साथ में एक पेशेंट को देखना है आपने, हर चीज के साथ में एक पेशेंट देखना है। और दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट एग्जाम। तो अब ये है कि जितना भी है, सबसे पहले एक बार अपने फैकल्टी के साथ में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होनी चाहिए। उसके साथ में जो सब्जेक्ट आपको लर्न करना, फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, दैट वी आर हियर टू हेल्प यू पीपल। And one more important thing that I have felt about this exam personally also, कि भाई you have to know all these subjects। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपने एनाटॉमी पढ़ा और ऑर्थोपेडिक्स नहीं पढ़ा और एग्जाम सेंटर में चला गए। अगर आप देखेंगे, इफ यू टॉक अबाउट एनाटॉमी क्वेश्चंस, राइट, दे गेव यू रेडियोग्राफ ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर्स, तो आपको रेडियोलॉजी आना चाहिए, आपको फ्रैक्चर्स मन में आना है कि दिस इज शाफ्ट ऑफ रेडियस फ्रैक्चर या फिर ओके शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर, एंड देन दे आर आस्किंग व्हिच नर्व वाज डैमेज, व्हाट इज द what is the nerve paralysis, if radial nerve is damaged, what is the kind of deformity that you see, the wrist drop का question इतना ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जा रहा है कि अगर आप समझोगे कि मैं रेडियल नर्व इज causing wrist drop ये पढ़ लूंगा, मैं ऑर्थोपेडिक्स नहीं जाऊंगा, मैं रेडियोग्राफ नहीं देखूंगा, right, I will not see the clinical case के कैसा होता है, then it will be difficult on the day of exam। Even they give you this anatomical snub box, they didn't ask you what is the base of the anatomical snub box,
they said you कि fracture हो रहा है anatomical stop box का, then there is a swelling over the anatomical stop box, then they asked you which bone is fractured. They did not ask you what are the boundaries of anatomical stop box. तो लेकिन बच्चों का टेंडेंसी होता है कि भाई हाँ हम ये सेलेक्टेड 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 12 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, खत्म नहीं करते. I understand it is a hard job. At Arise वही चीज होती है कि भाई the training should be difficult, the exam should be doable. But अगर आप ट्रेनिंग को इजी बना देंगे, right, the exam will look more difficult. So please, all the future aspirants, do the entire thing in detail. And आपके initial months of your journey in your preparation, all those future aspirants preparing for December, it is very important that आपका August, September, October, your in-depth study जब हो रही है, आपकी subject wise study जब हो रही है, do not miss sessions, do not miss your classes. The faculties जितना पढ़ा रहे, आप selected मत बनो, आप concise मत बनो, देखिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग डिफिकल्ट दिखेगी, थोड़ा एक्सटेंसिव रहेगा, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि एग्जाम उस तरह का पूछा जा रहा है. द फैकल्टीज विल आल्सो टीच यू कि भाई आपको जो पूछा जा रहा है, जिस लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ऑल द 19 सब्जेक्ट्स का. एंड डोंट वरी अबाउट कि भाई सर मेरे को FMGE करना है, रिवीजन करना है. एट अराइज विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रोसेस, लेकिन आपको जुड़े हुए रहना है पूरा कोर्स तक, राइट फ्रॉम द रेगुलर पावर कोर्स, द टेस्टेड डिस्कशन, फास्ट ट्रैक रिवीजन. वी हैड वेरी गुड strike rate from the QRS session. I've been seeing the questions being sent from the students also. Okay, we जो questions वो लोग screenshot लेके भेज रहे थे. We felt happy that the kind of work that we have been doing is yielding results. Yes, I mean you have to get full-fledged knowledge. I mean compared to last exam, this exam was slightly on the difficult side, and but student who has done all the 19 subjects knows how to integrate those subjects, does not just have a very narrow. Okay, बच्चों का क्या होता है कि सर लैंग्वेज के आप जब तक सीखेंगे नहीं क्लास में, जब तक आप समझेंगे नहीं टर्मिनोलॉजी किस तरह से यूज किया जा रहा है, राइट, आप एग्जाम के दिन सीधा जाके आप वो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी इंटरप्रेट करना चाहोगे, डिफिकल्ट होगा. सो योर थियरी शुड आल्सो बी एनालाइज्ड कि आप वो क्वेश्चन सॉल्विंग में आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो. योर थॉट प्रोसेस शुड डेवलप इन दैट फैशन. So please, all these students in the universities who are listening to us, start early. आपको जब यूनिवर्सिटी में हम क्लासेस करने आते हैं, राइट, बिकॉज देखिए जो एग्जाम का पैटर्न पूछा जा रहा है, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस अर्लियर. तो तब जाके आपको लास्ट में रिवीजन करना है, MCQ सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करोगे आप, उतना प्रैक्टिस होगा. और ऐसा नहीं है कि भी नए क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टॉपिक्स वही है. ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से नया CMV पूछा जाता है, राइट, कार्डियक टैम्पोनाट पूछा जाता है, राइट. सो सेम रूटीन टॉपिक्स विल बी, डिप्रेशन पूछा जाता है, हॉर्सशू किडनी पूछा जाता है. क्वेश्चंस एंड विल कम फ्रॉम द सेम टॉपिक्स. लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं आता है. यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग. सारे 19 सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देते हुए integrated conceptual clinical learning के साथ जाना है. And I hope all the students who have attended the exam, आपको अभी लग रहा होगा कि भी सर मैंने ये गलत किया. ये ह्यूमन टेंडेंसी है. आप जो मिस करते हो, आपको जो गलत लगता है, आप जो रिकॉल में याद नहीं रहता, उसको लेके आप नर्वस होते हो. लेकिन जब रिकॉल बनेगा, आपको खुद आराम से, आपको जब बैठ के आप करोगे. एट अराइज वी रिलीज द रिकॉल पेपर्स ऑफ ऑल द एग्जाम्स. वी विल बी डूइंग दैट आल्सो फॉर यू दिस एग्जाम. आप एक बार आराम से देखोगे तो you will see a lot of questions आपने मार्क्स सही किए होंगे. and I'm sure we don't have to worry about 300 marks, right? so हमको अगर 200 भी सही हो जा रहे, 150 भी सही हो जा रहे, right, pretty much doable. so don't worry about those 50 questions, 60 questions जो difficult ने थोड़ा सा आपने न्यू लगा होगा. those will not decide your result. आपके जो रूटीन टॉपिक्स थे, जो रूटीन क्वेश्चंस थे, वो pretty much doable रहेंगे. आफ्टर 3-4 days, once you're settled, once you see the complete recalls, आपको खुद लगेगा कि मैंने ये सही मार्क किया है. And you will see that you will be happy and successful after the results. So don't panic now. And any other advices, Dr. Priyansh, from your side? Yes. So stay calm and let's wait for 1 or 2 days, and the recall will be very much lined up, and we will get to know the things. And see, whatever you have did in last 5 months, the rigorous effort that you have put, and there are several other factors are also there. So let's wait. And meanwhile, my personal suggestion to you, पेपर कितना ही अच्छा गया हो या कितना ही खराब गया हो, यू टेक अ रेस्ट ऑफ 4-5 days एंड वापस, क्योंकि आप एक मोमेंटम में चल रहे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है जब तक रिजल्ट आ रहा है. मे बी 15 days, 20 days. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाना है, ये करना है. आप 4-5 दिन रेस्ट करिए, फिर थोड़ा थोड़ा वापस टच में रहना है. दैट इज गोइंग टू वर्क इन द नीट PG एग्जाम और whatever is the next exam that you are going to appear. So and for the future aspirants, work on concept building. Whatever the rigorous training that is given to you in the Arise classroom, that is going to work you a lot.
एंड उसके साथ में रहिए। आप अगर क्लास नोट्स भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जो इस एग्जाम में भी हुआ है, क्लास नोट्स जिसने बहुत अच्छे से पढ़े, जो एमसीक्यू दिए गए थे अगर वो अच्छे से किए, टीएनडी करवाया, फिर क्यूआरएस, एंड अगर हमने केवल इतना इतना भी कर लिया है ना, इजीली हम एग्जाम क्रॉस करेंगे। जस्ट नॉट 150 विल क्रॉस 180 200 मार्क्स। सो दिस इज माय मैसेज टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। If you all see, okay, the FTR sessions में भी देखेंगे आप, okay, the PDFs are there with all of you guys, okay, तो आप देखोगे कई सारे the Popeye sign का, you know, I have discussed anatomicals in a box also, you know, even in the orthopedic sessions, you know, but लेकिन पूरा कोर्स करना है आपको, selected नहीं होना है, पूरा लास्ट तक आपको, you know, अपना एफर्ट लगाना है along with the team, and we are there to see that, you know, आप you have a successful exam and एक peaceful, you will not feel that same thing during the journey, क्या लगेगा कि इतना exhaustive है, इतनी मेहनत है, लेकिन looking at the exam pattern, we have no other choice but to, you know, build our training in such a fashion that when we go into the examination hall, we feel happy. And Dr. Nadeem, your you know, advice for future aspirants, like how should their approach be, especially when they are, you know, preparing for the December exam? सर सबसे पहले मैं वो स्टूडेंट्स को कहूँगा जिन लोगों ने एग्जाम लिखा है अभी ना, अभी like I have got phone call from so many people कि जिन लोगों को लगा कि सर अच्छा नहीं हुआ, कुछ को लगा कि सर ये हुआ, कुछ को लगा कि सर बहुत अच्छा हुआ था, हमने जो क्लास में सब कुछ पढ़ाया गया था लेकिन हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अब जिन लोगों ने जितना भी एग्जाम लिखा सब कुछ ओवर, अभी जैसे डॉक्टर प्रियांश सर ने कहा ना, सब लोग को 4-5 डेज आराम से रेस्ट करना है। 2-3 दिन के बाद जैसे जैसे रिकॉल आते रहें आपको समझ में आएगा कि देखो सब कुछ तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, सब कॉन्शियसली सब कुछ होगा, तो आपने बहुत सारे आंसर सही किए होंगे जो कि आपको अभी लग रहा है कि शायद आपका गलत होगा, तो उस चीज का टेंशन नहीं लेना। अभी चुपचाप 4-5 डेज बुक से बिल्कुल दूर रहना। हम लोग भी इंसान है, सबसे पहले रेस्ट दो, बॉडी को दिमाग को रेस्ट दो आप सबसे पहले, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, मतलब जो भी होना है आगे, अगर अगर के कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, इतना तो याद रखो सब लोग, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ का। I hope कि अच्छा होगा। Most of the students are positive. I'm talking to, you know, lot of students and मैंने काफी सारे बच्चे दिल्ली में भी बात किया, right, हैदराबाद कम्युनिकेट किया, and I'm seeing some, you know, positive feedback from the students के यार वो लगता है वो एक नया है ना एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है, उनको चाहिए कि 300 के 300 सेम दिखे। एग्जामिनर इज आल्सो नॉट योर क्लोज फ्रेंड, ओके, आपका दोस्त नहीं है, तो वो सताएगा थोड़ा, लेकिन मार्क्स देगा and you will have your results coming up. So don't panic and be hopeful, right? As sir said, it's important to take a break this time. आप लोग इतने साल से बाहर भी थे, घर का खाना नहीं खाए होंगे अच्छे से, right? Go back, eat food properly and stay connected to your friends and family. And I know that exam is getting little difficult, right, for all the aspirants also. Please, you know, start focusing on your content. Please be regular to your classes, sit in the library. देखो एक बार करो, अच्छे से करो, दिलो जान लगा के करो, right? इसमें half hearted effort मत करो, सोच के okay try करते हैं, let me try will not help you. मेरे को लेट मी ट्राई टू पास द एग्जाम बोल के अगर एटीट्यूड से आओगे, आप आके आप बड़ो बैठोगे तो नहीं होगा। यू हैव टू सिट इन द क्लास विद एन एटीट्यूड ऑफ आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। मैं जो चाहे जैसा जितना टाइम लगेगा, आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। वो माइंडसेट, वो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में लेट मी सी क्या चल रहा है, लेट मी ट्राई क्या होगा, इस तरह के एटीट्यूड से आओगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू कम विद एन एटीट्यूड इन द क्लासरूम कि आई विल हैव टू पास दिस एग्जाम, आई विल डू एवरीथिंग दैट इज नीडेड to pass this exam. So that little aggressive approach to your efforts, right, will yield you results. And about the recall sessions, the team is working. We will be providing you like all of the team is working very hard to collect with the options, with the images, and a lot of images was asked this exam. आपने देखा होगा lot of images, laryngomalacia, pediatrics, anencephaly, radiology images were there, and histopathology images were there. So there is a lot of information on the images also. So give importance to the images when you're studying. And clinical subjects, especially the medicine, surgery, OBG, as usual were tested in large numbers, right? Do not ignore your short subjects. सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट्स थे रेडियोलॉजी में, हॉर्सशू किडनी, राइट, योर डबल बबल, जब आप क्लास कर लोगे अच्छे से तो यू विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होगा कि डिफिकल्ट होगा, राइट? सो दीज क्वेश्चंस विल बी इवन डर्मा पेपर वाज वेरी वेरी डूएबल एंड इजी था पेपर्स। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पीएसएम नया था, कितना भी आप करते जाएंगे अपडेट्स आते रहेंगे, राइट? सो यू विल स्लाइटली फाइंड इट ट्रिकियर। तो वो एग्जामिनर भी वहां पे थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स होते हैं, रेडियोलॉजी, डर्मा, एनेस्थीसिया, मलम्पटी क्लासिफिकेशन, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दीज आर योर सब्जेक्ट्स दैट विल गिव यू सम कुशन,
So always do not ignore your short subjects. उनको एक बार भी करके रखेंगे, और वो भी during the classes. ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके मेरे को एक छोटा PDF मिल गया, एक वन लाइनर मिल गया, एक फास्ट ट्रैक एक आधे घंटे में, आधे दिन में कर लेंगे, बस हो गया. स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी होगी है कि दे आर गोइंग फॉर वेरी वेरी शॉर्ट. आधे घंटे में एक सब्जेक्ट चाहिए, एक घंटे में एक सब्जेक्ट चाहिए. दिस विल नॉट वर्क. ओके, वो एग्जामिनर आपको ऐसा इतना आसान होता है कि भी एक एक घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है, अनलेस यू हैव डन योर क्लास प्रॉपर्ली. अगर आपने अपने क्लासेस प्रॉपर्ली करें तो आपका रिवीजन इजी होता रहेगा. देखिए ये एक ट्रेंड होता है, इसलिए ना अराइज पे रेगुलर कोर्स, इवन इफ यू आर जॉइनिंग नाउ, वी विल कंप्लीट ऑल योर 19 सब्जेक्ट्स बिफोर द एग्जाम, राइट? इट्स इवन इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी. आप उसकी टेंशन मत लो. The team will work to see that even if you're joining in the first week of August, we have already batches announced also, right? So वो पूरे 19 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करेंगे. But it is 3-part course, और आपको तीनों पार्ट में आपको इक्वल एंथुसियाज्म से इन्वॉल्व होना है. You have first part जहाँ पे आपको फैकल्टी इन डिटेल पढ़ाएंगे सब्जेक्ट्स. Second part where they will do the questions and analysis, the test and discussion part. Third part is your fast track revision courses that we do just close to exam. So आप सिर्फ फास्ट ट्रैक रिवीजन पे डिपेंड करके आप क्लास एग्जाम जाएंगे, वो भी वर्क नहीं करेगा. आपको फास्ट ट्रैक काम कब करेगा? तब आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड किए. आपको फर्स्ट टाइम रीडिंग में लगेगा, टाइम लगेगा. आपको रेडियोलॉजी पढ़ने में 3 दिन लग जाएंगे, आपको मेडिसिन कवर करने में 10-12 दिन लग जाएंगे. लेकिन जैसा ही आप टेस्ट एंड डिस्कशन में आओगे, रेडियोलॉजी आपको 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा. जैसे आप फास्ट ट्रैक रिवीजन में आओगे, वी विल कंप्लीट इट विद इन 4 hours. So this is a cycle that we'll go through, right? So, but you have to go to be part of that, go through that entire journey, do all 19 subjects. This exam has given integration next level. So, आपको 19 subjects करना essential है for getting good scores in the exam. And any final comments, Dr. Priyansh? And so wish you all the very best for the results, and hope let's be positive, and अच्छा ही होगा. आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, and definitely हम exam clear करेंगे. Wish you all the best. Yeah, Dr. Nadeem. And especially for all the juniors who are going to write exam in December, आप लोग सबसे पहले फोकस करो 19 के 19 सब्जेक्ट पूरे फैकल्टी के साथ फिनिश करना है. उसके बाद एक चीज और याद रखो, हम लोग क्या करते हैं अराइज पे ना, कि जैसे एक बार सब्जेक्ट तो फिनिश हो गए, उसके बाद आपको रिवाइज करना है. लेकिन स्पेशली हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं क्लिनिकल केसेस पे. वो चीज स्टूडेंट्स को वो समटाइम्स डिफिकल्ट लगता है कभी कभी. वो चीज आप लोग मतलब समझो इस बात को कि अब का मतलब कि नया चीज यही है, ठीक है? तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं. वो सारे फैकल्टी इस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे कि हर सब्जेक्ट के बाद देयर विल बी क्लिनिकल केस डिस्कशन. फाइन नो. सो जितना जल्द हो सके आप सब लोग स्टार्ट करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. And few last words from me. अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, all the people who have written the exam, आपने अच्छे से मेहनत की है, right? Be proud of your efforts. मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी, मेहनत हमेशा इन्वेस्ट होती है. You will see results coming out of it, and we are hopeful. Our prayers are with you from the entire team of Arise that you have a successful result. But never be disappointed, right? It will only make you have better knowledge, better understanding, and it's invested. Please remember, all that effort that you have done कभी खराब नहीं होता है. मेहनत खराब नहीं होती है, मेहनत इन्वेस्ट होती है. Second thing, for all the upcoming students, right? Please, your initial months are more crucial than the last November and December. आपके initial months में pull up your socks, give your 100%, and we are with you. We are equally, in your journey, and we hope that you all will come out successful. We are with you. आपको जुड़े रहना है पूरे 19 subjects और पूरा course completion तक. Okay. So all the best, all of you, and we'll be sharing a recall that will be coming up soon. And we wish that we'll have very bright results from our students of Arise, and I thank all the faculties for the amazing work that they have been doing, throughout these sessions, in all the branches as well as in abroad. And thank you so much, all the faculties, Dr. Priyansh and Dr. Nadeem, for joining so late, and for being with the students at this crucial phase post exam. Okay, thank you so much, all of you. Good night. Good night. Good night.